پہلے بات کرتے ہیں جناح ہاؤس حملے میں ملوث ملزمان کی جے آئی ٹی میں پیشی کے معاملے کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزمان جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ جے آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی حماد اظہر کو طلب کیا تھا۔ تفتیشی ٹیموں نے تمام ملزمان کو پیشی کے سمن وصول کروائے تھے۔ جناح ہاؤس حملہ ہے یہ اور ملزمان کی جے آئی ٹی میں پیشی کا یہ معاملہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزمان جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے شہزیب شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، یہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ملزمان کی جے آئی ٹی میں پیشی کا یہ معاملہ تھا اور چیئرمین تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما مقررہ وقت مکمل ہونے کے باوجود جے آئی ٹی کے سامنے آج پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں پیش نہیں ہوئے ہیں، جبکہ تفصیلات کے مطابق جے آئی ٹی نے چیئرمین تحریک انصاف بشرا بی بی حماد اظہر اور مراد داس سمیت جو ہے وہ حسان خان نیازی کو بھی جو ہے وہ طلب کر رکھا تھا اور تفتیشی ٹیموں نے تمام ملزمان کو پیشی کے سمن بھی وصول کروائے تھے، جبکہ جس کے باوجود ملزمان انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر پیش نہیں ہوئے ہیں، جبکہ جے آئی ٹی نے جناح ہاؤس حملے کے ملزمان کو دوسری مرتبہ آج طلب کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ ملزمان خود تو پیش نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے وکیل جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے، لیکن آج جو ہے نہ ان کے وکیل اور نہ ہی یہ ملزمان جو ہے وہ پیش ہوئے، جبکہ دوسری جانب پولیس جو قلعہ گجر سنگھ ہے اس کے باہر سیکیورٹی کے بھی سخت ترین جو ہے وہ اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار طلب کر رکھے تھے تاکہ سیکیورٹی کے بھی بھرپور انتظامات کیے جا سکیں، جبکہ ملزمان نے کے خلاف جو ہے وہ تھانہ نصیر آباد اور ماڈل ٹاؤن میں دہشت گردی کے تحت دفعات بھی دفعات کے تحت جو مقدمات درج ہوئے تھے، اور اس میں جو عدالت ہے اس نے ملزمان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر رکھے تھے۔ اسی سلسلے میں آج جو ہے وہ آپ کا بہت شکریہ شہزیب۔ منی لانڈرنگ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی ایف آئی اے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، جبکہ عدالت نے پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو ضلع کچہری کی عدالت میں پیش کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی ورک نے سماعت کی۔ ایف آئی اے کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ پرویز الہی نے کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ کی، جس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ عدالت سے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عدالت میں چودھری پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ پرویز الہی کے خلاف ایف آئی اے حکام کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ مقدمے کی تفتیش پہلے ہی کر لی گئی ہے اور انکوائری بھی بند کی جا چکی ہے۔ عدالت میں پرویز الہی نے روسٹرم پر آ کر بات کرنے کی اجازت مانگی تو عدالت نے ان کو بولنے کا موقع فراہم کر دیا۔ پرویز الہی نے کہا کہ مجھے جیل میں کوئی بھی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی، جیل میں فرش پر کیڑے رینگتے ہیں، پچھلی سماعت پر بھی یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اب بھی یہی کپڑے ہیں۔ ایف آئی اے حکام ہائی کورٹ کی حکم عدولی کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد جسمانی ریمانڈ کی ایف آئی اے کی درخواست مسترد کر دی اور پرویز الہی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ کیمرہ مین نعمان اجاز کے ساتھ ابوبکر طارق، لاہور نیوز۔ سینیٹر اعجاز چودھری کو جیل میں سہولیات کی فراہمی کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے سلمہ اعجاز کی درخواست نمٹا دی۔ سینیٹر اعجاز چودھری کو جیل میں سہولیات کی فراہمی کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان نے سلیمی اعجاز کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں آئی جی جیل سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اعجاز چودھری سینیٹر اور عمر رسیدہ شہری ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد اعجاز چودھری کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا گیا ہے۔ کیمپ جیل میں اعجاز چودھری کو قانون کے مطابق سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ درخواست گزار کے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ اعجاز چودھری کو جیل میں ادویات، کھانے کی فراہمی اور دیگر سہولیات نہیں دی جا رہی، لہٰذا عدالت جیل حکام کو سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ دوران سماعت پنجاب حکومت کے وکیل نے جواب جمع کروایا، جس میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار نے جیل میں سہولیات کے لیے آئی جی جیل کو درخواست دی۔ آئی جی جیل نے درخواست ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو بھجوا دی۔ اے ٹی سی اور ڈکیتی کے ملزمان کو بھی بی کلاس نہیں دی جاتی۔ عدالت نے پنجاب حکومت کے جواب کی روشنی میں درخواست نپٹا دی۔ عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو اعجاز چودھری کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس پر حملے میں ملوث 180 ملزمان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ کل تک مؤخر کر دیا ہے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث ملزمان عدم شناخت اور عدم ثبوت پر رہائی بھی پانے لگے ہیں، جبکہ جیلوں میں قید ملزمان کی تعداد صرف 1049 رہ گئی ہے۔
जिना हाउस हमला केस इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने समाअत की। खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा, इबाद फारूक समेत 158 मर्द और 22 खातून ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मुल्जिमान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिना हाउस के करीब से गुजरने वालों को भी जियो फेंसिंग में गिरफ्तार किया गया। जिन मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नहीं है उन्हें जमानत दी जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरियाद अली शाह ने मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की और कहा कि मुल्जिमान जलाओ घिराव में मुलव्विस हैं, जिसकी फुटेज मौजूद है। मुल्जिमान शनाख्त परेड में शनाख्त हुए, उनके फोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी मौजूद है। अदालत ने खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा, इबाद फारूक समेत गिरफ्तार 180 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला मुअख्खर कर दिया। अदालत ने बावर करवाया कि मुल्जिमान की तादाद ज्यादा है। तमाम फाइल्स का जायजा लेने के बाद जुमेरात को फैसला सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब सानहा 9 मई में मुलव्विस मुल्जिमान अदम शनाख्त और अदम सबूत पर रिहाई पाने लगे। जेलों में कैद मुल्जिमान की तादाद सिर्फ 1049 रह गई। लाहौर की 2 जेलों में 750 जबकि पंजाब भर की जेलों में 4200 के लगभग मुल्जिमान को भिजवाया गया था। लाहौर की जेलों में अब 37 खातून जबकि 432 मर्द मुल्जिमान मौजूद हैं। पंजाब की दीगर जेलों में 574 मुल्जिमान कैद हैं, जिनमें सिर्फ 1 खातून शामिल है। ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दी के ज्यादातर मुकदमात में संगीन दिफात खारिज करके मुल्जिमान को जमानत दे दी गई है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज सियासी महाज पर सरगर्म मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें की हैं। मरीम नवाज से साबिक MNA बाबर नवाज और साबिक MPA शाहिद महमूद की अलग अलग मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया। मरीम नवाज से एबटाबाद में मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर मलिक मोहब्बत आवान भी मिले। मरीम नवाज को मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज से नीदरलैंड के सफ़ीर की मुलाकात हुई है, जबकि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब ने नीदरलैंड के सफ़ीर से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। इस मौके पर मुल्की मुआशी सूरत हाल पर भी तफसीली जायज़ा लिया गया है और इस हवाले से गुफ्तगू की गई है। हमजा शहबाज का सफ़ीर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया है, जबकि मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत और वसी करने की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अचानक शाहदरा अस्पताल पहुंच गए। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। MS शाहदरा अस्पताल डॉक्टर सबाहत ओहदे से फारिग, 10 से ज़ायद स्टाफ को मुअत्तल करके महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। शाहदरा हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान और मसाइल ही मसाइल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शाहदरा हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। मरीजों ने निगरान वज़ीर आला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। निगरान वज़ीर आला ने शिकायत पर MS शाहदरा हॉस्पिटल डॉक्टर सबाहत को ओहदे से हटा दिया। PM ओमियो हॉस्पिटल डॉक्टर सुहेल अरशद को 3 माह के लिए शाहदरा हॉस्पिटल का आर्जी MS लगा दिया गया। शाहदरा हॉस्पिटल में मुबैना करप्शन, चोरी और कसीर तादाद में अमले की गैर हाजिरी पर MS डॉक्टर सबाहत के साथ 10 से ज़ायद दीगर स्टाफ को भी मुअत्तल किया गया। तमाम मुअत्तल अमले को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ज़िला इंतजामिया डेंगू पर काबू पाने के लिए मुतहरिक हो गई है। DC लाहौर की सरबराही में इंसदाद डेंगू कार्रवाइयों पर रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा इजलास हुआ है, जबकि लाहौर के 10 जोन्स में कार्रवाइयों का तफसीली जायज़ा लिया गया है। जबकि इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफ़े हैदर ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 637 अफराद को नोटिस जारी करके 63 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, जबकि किसी भी इलाके से लार्वा बरामद होने पर मुतल्लिका इंचार्ज जवाबदेह होगा। जबकि 6 माह के दौरान 28,657 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जबकि 27,146 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। DC लाहौर ने मजीद कहा कि कवानीन पर अमल दरामद न करने पर 1,294 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 60 अफराद को गिरफ्तार करवाया गया है। लखूडेर मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान है। व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि इंतजामिया ने भी चुप साध दी है। व्यापारी कहते हैं कि यहाँ पर टेंट, पानी ना ही बिजली मौजूद है, वाशरूम की भी सहूलियात मौजूद नहीं है, जबकि माफिया जानवर खड़े करने के लिए भी पैसे मांग रहा है।
ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडियां सज गईं। लखो डेयर मंडी में सहूलियात की अदम दस्तयाबी, व्यापारियों और खरीदारों की परेशानी बढ़ गई। लखो डेयर मंडी में टेंट लगाए गए, ना ही पानी दस्तयाब है, बिजली भी गायब, वाशरूम की सहूलत भी मुयसर नहीं। इंतजामिया की जानिब से सहूलियात न होने के बराबर हैं। व्यापारियों का कहना है कि सहूलियात न मिलने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माफियाज जानवर भी खड़े करने के लिए पैसों का तकाजा कर रहे हैं। जो भी बंदा आता है, एक नहीं आता है, दो नहीं आते, तीन आते हैं, बार बार आती हैं। जो एक कहते हैं मेरा जगह है, दो कहते हैं त्रिया मेरा जगह है। पैसे के लिए हमारा भी वो प्रॉब्लम है। पानी का तो पहले भी बंदे ने बताया, हमारे दोस्ती ने, पानी का प्रॉब्लम है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, यही मसले बात है। सहूलियात के लिए मेरे ज़्यादा तकलीफ है। क्या का ऊपर से गर्मी है तो नीचे पानी का भी बंदोबस्त नहीं है। पानी जो इधर से अभी देखो ना, ये गन वगैरह जो पड़ा है ना, इधर से नीचे 70 फुट हम बोर कर रहे हैं, तो बोर का पानी इसी तरह आते हैं ना, बिल्कुल पीला, अभी माल को पीने को भी नहीं है। न नमाज का कोई सहूलत है, न वज़ू बनाने का कोई सहूलत है। तो माल मवेशी का तरपाले टेंटे भी नहीं दिया, ना बाथरूम है। व्यापारियों का मजीद कहना है कि इंतजामिया मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पर लगाने के लिए भी 50 रुपये वसूल करती है। आला हुकाम नोटिस लेकर सहूलियात फराहम करें। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। मवेशी मंडियों में हर किस्म का जानवर मौजूद, लेकिन कौन सा जानवर ख़रीदें और कैसे ख़रीदें ये अहम होगा। ऑस्ट्रेलियन बैल और खूबसूरत दुम्बे हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी रह गए। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। व्यापारी और खरीदार अपने अपने दाव पेच इस्तेमाल करने लगे। व्यापारी की कोशिश है कि मेहनत का भरपूर मुआवजा मिले, ताहम खरीदार भी अपनी जेब देकर भाव ताव में लगे हैं। मनामा मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन नस्ल के ब्लैक एंड व्हाइट बैल का अपना ही अंदाज है। कादाबर, सेहतमंद जिसामत, स्याह और सफेद रंग के इम्तिजाज ने इस बैल को मुनफरिद बना दिया है। लेकिन इस बैल की कीमत है 15 लाख रुपए। व्यापारी का कहना है कि कीमत इसकी खूबसूरती की है, कोई कदरदान खरीद ही लेगा। खरीदार कहते हैं महंगाई और खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन कीमत दुगनी मांगी जा रही है। मवेशी मंडी में खूबसूरत दुम्बे भी मौजूद हैं। दुम्बे तादाद में कम, लेकिन सबसे मुनफरिद हैं। दुम्बे की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए तक मांगी जा रही है। उसको रेट 1.5 लाख है और इसका 1,40,000 लगा है। जिसको जरूरत होता है वो लेगा, जो नहीं लेगा तो पता नहीं, वो तो वैसे भी नहीं लेगा, वो तो वैसे भी रेट शेट पूछेगा। हर गुजरते लम्हे के साथ मंडी में भी तेजी आ रही है। एक से एक बढ़कर जानवर मौजूद है, बस जेब भारी और दिल बड़ा रखना होगा। लखो डेयर मवेशी मंडी में भी कुर्बानी के जानवरों की भरमार है। शेखुपुरा से आए 3 बैल मरकज़ निगाह बन गए हैं। शेरू, पांडा और बादशाह का चर्चा है, जबकि वजन की तरह इनकी कीमत भी बहुत भारी है। मुबीन हैदर की रिपोर्ट। लखो डेयर मवेशी मंडी शेखुपुरा के 3 बैलों ने धूम मचा दी। बादशाह, शेरू और पांडा नामी मुनफरिद बैल मवेशी मंडी की शान बन गए। भारी भरकम जिसामत वाले इन बैलों का खूबसूरती में भी कोई सानी नहीं। इन वजनी बैलों को खरीदने के लिए जेब का भारी होना भी लाजिम है। पांडा नामी बैल की डिमांड 45 लाख रुपए और शेरू के दाम 40 लाख रुपए हैं। व्यापारी बादशाह नामी बैल भी 35 लाख रुपए से कम में फरोख्त करने को तैयार नहीं। बैलों के मालिक का कहना है कि ऐसे जानवरों की खास निगहदाश्त करना पड़ती है। इनकी खुराक में देसी घी और दीगर लवाजमात इस्तेमाल करते हैं। इनकी भाई सफाई का ख्याल रखना पड़ता है, अच्छा दाना डालना पड़ता है, घी चोखर काल खुल डालते हैं, मकई। इनकी सफाई का ख्याल करते हैं, नहलाते हैं रोज़, सुबह भी शाम भी, और गर्मी में पंखे चला कर सफाई करते हैं। बैलों के निगरान ने कहा कि दिन में 2 बार इन्हें नहलाते हैं। इनकी सफाई का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। सुबह इन्हों रोज़ 3 बजे पिछले टाइम नहाना है, डबल सर्फ मारनी, उस तो पीछे गतावा करना है, गतावे तो पिछे फिर गंदम का आटा पाना है, आटे तो पिछे फिर मकई का आटा पाना है, उस तो पिछे इन्होंने फिर हार श्रृंगार इन्हों का करना है, पिछे बन देना। तो अजे मुल नहीं पूरे लगते बच्चे वेचे ने 2, एक 38 लाख का, एक 40 लाख का। निखरी रंगत और खूबसूरत जिसामत के साथ ये बैल मंडी में हर किसी की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। वासा ने ईद उल अज़हा के दिनों में वाफर मिकदार में पानी की फराहमी का मंसूबा बना लिया। ट्यूबवेल्स के औकात कार बढ़ा दिए गए हैं। ईद के दिनों में ट्यूबवेल्स के औकात कार मामूल से 4 घंटे बढ़ाने का फैसला। मौजूदा सूरत हाल में 13 घंटे ट्यूबवेल्स के जरिए पानी की फराहमी की जा रही है। ईद के तीनों रोज़ वासा के ज़ेर इंतज़ाम ट्यूबवेल 17 घंटे चलाए जाएंगे। डायरेक्टर मेंटेनेंस और डायरेक्टर्स O&M के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। लोड शेडिंग की सूरत में जनरेटर्स के जरिए ट्यूबवेल्स चलाए जाएंगे।
ईद कुर्बा के लिए लगाए गए मवेशी मंडियों में सफाई ऑपरेशन जारी है। LWMC के 100 से ज़्यादा वर्कर्स और मशीनरी 3 शिफ्टों में सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, जबकि शहर की 9 मवेशी मंडियों में सफाई ऑपरेशन तीनों शिफ्ट्स में जारी है, जबकि 100 से ज़्यादा वर्कर्स और 50 से ज़्यादा मशीनरी सफाई इंतजामात पर मामूर है। जबकि CEO सफाई कंपनी बाबर साहबीन का कहना है कि मैंने डंपर ट्रैक्टर लोडर्स की मदद से ग्रीन वेस्ट ठिकाने लगाया जा रहा है, जबकि मंडियों के दाखिली और खारजी रास्तों पर वाटर ब्राउज़र्स की मदद से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। जबकि 9 मवेशी मंडियों में अवामी आगाही के लिए खसूसी कैंप्स लगाए गए हैं, जबकि आराइशों को ठिकाने लगाने के लिए वेस्ट बैग्स की फ्राहमी भी कैंप से यकीनी बनाई जाएगी। ईद उल अज़हा की आमद सब्ज़ मसालाजात के दाम बढ़ने लगे। पोल्ट्री मसनूआत, सब्जियों और फल भी पहुँच से दूर। अवाम कहते हैं महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुकी। ईद कुर्बान से कबल मुनाफाखोर सरगर्म। सब्ज मसालाजात की खरीदारी जेब पर भारी। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च और लीमू पहुंच से बाहर। ओपन मार्केट में प्याज और टमाटर 80, लहसुन 450 रुपए फी किलो है। अदरक 850, सब्ज मिर्च 120 और लीमू 200 रुपए फी किलो बिकने लगे। सब्जियों में टींडे देसी और मेथी 200, फूल गोभी 130, शलजम 180 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में सेब 480 रुपए फी किलो और केले 300 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। ब्रायलर गोश्त 4 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 656 रुपए मुकर्रर। अंडे 1 रुपए महंगे हो गए, फी दर्जन कीमत 244 रुपए हो गई। अवाम कहते हैं मंडियों में इतनी महंगाई है तो दुकानों पर सब्जियां सस्ती कैसे मिलें। इस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं वो इंतहाई महंगी नज़र आ रही है। करेले देख लें आप, कद्दू देख लें, कोई शिमला मिर्च तक ले लें, आलू प्याज हर चीज़ महंगी है। सब्ज़ी को तो यकीन करें कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि गोश्त बोटी खाना बहुत मुश्किल है। आलू प्याज नहीं बंदा ले सकता, इतनी ज़्यादा महंगाई है। अदरक, प्याज, लहसुन, टमाटर, ये चीज़ों को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जब कोई त्यौहार आए तो उनको चीज़ें बजाय सस्ती करने के वो महंगी कर देते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर उनको कोई देखने वाला इन दुकानदारों को हो, अगर पीछे से वो बेचारे मंडियों से सस्ती लाएंगे तो हमें सस्ती देंगे। महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुकी है। मार्केट में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न होने से अवाम को महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर में तब्दीली की मंजूरी दे दी है, जबकि खालिद बर्ड चौक पर अंडरपास की तामीर LDA, जबकि घोड़ा चौक फ्लाईओवर की तामीर CBD पंजाब करेगी। जबकि LDA ने गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर के दोबारा PC1 की तैयारी शुरू कर दी है। शहर की बड़ी शाहराहों को सिग्नल फ्री कॉरिडोर में तब्दील करने का बड़ा इकदाम। हुकूमत शहर में ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने और लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाएगी। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग और वोल्टन रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का मंसूबा बना लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे की मंजूरी दे दी, ताहम हदूद का तयन न होने के सबब मंसूबे में तब्दीलियां कर दी गयी। गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर का डिजाइन पुराना मगर तामीराती काम अब 2 अथॉरिटीज करेंगी। कॉरिडोर का एक हिस्सा LDA और दूसरा हिस्सा CBD को तकवीज। दोनों अथॉरिटीज को मास्टर प्लान के मुताबिक तामीराती काम की जिम्मेदारी सौंप दी गई। खालिद बर्ड चौक पर अंडरपास और घोड़ा चौक डिफेंस पर यकतरफा 2 लेन का फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने LDA को खालिद बर्ड चौक के मकाम पर अंडरपास के काम की मंजूरी दे दी। घोड़ा चौक फ्लाईओवर का मंसूबा LDA से लेकर CBD को सौंप दिया गया। CBD फ्लाईओवर के साथ साथ वाल्टन रोड की मुरम्मत और बहाली के मंसूबे पर भी काम करेगी। LDA ने गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर के दोबारा PC1 की तैयारी शुरू कर दी है। परवेज़ इलाही दौर में मेगा प्रोजेक्ट संगे बुनियाद रखने के बाद बंद कर दिए गए। साबिक वज़ीर आला ने 3 मंसूबों के संगे बुनियाद रखे, मगर तामीराती काम का आगाज़ नहीं हो सका। समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम, दादा दरबार पार्किंग प्लाजा और बाबू साबू इंटरचेंज मंसूबे शामिल। मेगा प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद, काम का ना हुआ आगाज। परवेज इलाही की पंजाब हुकूमत ने आखिरी अयाम में मेगा प्रोजेक्ट्स के संगे बुनियाद रखे, जिसके बाद मंसूबे बंद कर दिए गए। साबिक वजीर आला की जानिब से 3 मंसूबों के संगे बुनियाद रखने के बाद काम का आगाज ना हुआ। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। संगे बुनियाद रखने के बाद पंजाब हुकूमत मंसूबे को भूल गई। निगरान हुकूमत आने के बाद समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम के फंड्स भी जारी नहीं हुए। चौधरी परवेज इलाही ने 17 जनवरी को दाता दरबार पार्किंग प्लाजा मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। संगे बुनियाद रखते वक्त भी इस मंसूबे का टेंडर नहीं हुआ था। 5 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद टेंडर नहीं हुआ।
इफ्तिताही तकरीब पर सरकारी खजाना लगाकर साबिक वजीर आला पंजाब की तख्ती लगवा दी गई। पार्किंग प्लाजा की अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल नहीं हो सकी। साबिक वजीर आला परवेज इलाही ने बाबू साबू इंटरचेंज मंसूबे का संग बुनियाद रखा। LDA ने मंसूबा शुरू करने के बजाय तारीखें बढ़ाना शुरू कर दी। बाबू साबू इंटरचेंज मंसूबे पर भी तामीराती काम का आगाज न हो सका। LDA इंतजामिया का कहना है कि शहर के तीनों मेगा प्रोजेक्ट्स को आइंदा माली साल के बजट में शामिल किया है। आइंदा माली साल में तीनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम का आगाज होगा। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का ख़ुसूसी इजलास हुआ है। लाहौर समेत पंजाब भर में तारीख़ी इमारतों और कदीम दरवाज़ों की बहाली का फैसला किया गया। लाहौर के 12 कदीम दरवाज़ों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। निगरान पंजाब काबीना ने लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी की कारकर्दगी को भी सराहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम इजलास के हवाले से। इजलास के मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का ख़ुसूसी इजलास। लाहौर समेत पंजाब भर में तारीख़ी इमारतों और कदीम दरवाज़ों की बहाली का फ़ैसला। लाहौर के 12 कदीम दरवाज़ों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। निगरान पंजाब काबीना ने लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी की कारकर्दगी को भी सराहा।